So today it's the question answer session, and we'll start with the question answer. So I think I had a question from Dr. Benazir the other day that how do we differentiate between schizophrenia and schizoaffective disorder? So, anyone have answer to this question? Can you hear me, sir? Yes, yes, I can hear you. Yeah. So, anybody who can answer this question कि schizophrenia और schizoaffective disorder में क्या फर्क है? सर, जैसे कि नाम से पता चलता है कि सिजोफ्रेनिया में केवल सिजोफ्रेनिक सिम्टम रहेगा और सिजो हम्म, अफेक्टिव में दोनों सिजोफ्रेनिया और हम्म, कॉन्कॉमिटेंटली और कॉन्सिक्वेंटली अफेक्टिव सिम्टम या मैनिक या डिप्रेसिव रहेगा, ऐसा मेरा जनरल अंडरस्टैंडिंग है सर। क्या? So basically the difference is schizophrenia. Basically, there are two entities. एक तो है कि schizophrenia और दूसरा होता है schizo or bipolar affective disorder. But when in one episode they are combined, the symptoms are combined within one episode. So schizophrenia and depression occurring in the same episode at the same time, then you will call that episode as a schizoaffective episode. So basically, in my opinion, that's a kind of misnomer. That should not be a disorder called schizoaffective episode, because the episode जो है वो डिफर कर सकता है. मे बी के एक बंदा है जिसको फेब्रुवरी 2020 में स्किट्सोफ्रेनिया और मैनिक सिम्टम्स दोनों इकट्ठा शुरू हुए, एंड इन अप्रैल ही गॉट ट्रीटेड और दोनों सिम्टम्स खत्म हो गए. एंड स्किट्सोफ्रेनिया was the main diagnosis, or the psychotic symptoms were the main presenting problems. So that should be the thing. Otherwise तो आप इसको mania with psychotic symptoms कह देंगे ना. तो अगर आपने schizo affective disorder का रखना है diagnosis, तो then schizophrenia symptoms should be predominant and should be primary, and affective symptoms should be occurring in the same episode. So, in my humble opinion, it should be classified as schizoaffective episode, not as schizoaffective disorder, because that creates the dispute that and that creates confusion कि हम schizoaffective disorder किसको कहें, क्योंकि schizophrenia should be the main diagnosis on the longitude. अब एपिसोडिक स्किट्सोफ्रेनिया है, उसमें किसी एपिसोड में स्किट्सोफ्रेनिया कैन बी ऑन इट्स ओन. अब बाद में 2 महीने बाद डिप्रेशन आता है, या 2 महीने के बाद मेनिया आता है, या तो या मिक्स्ड अफेक्टिव एपिसोड 2 महीने के बाद आता है. बट स्किट्सोफ्रेनिक सिम्टम्स, if they are not there, we will not call it a schizoaffective episode. So both schizophrenic symptoms and manic symptoms should be within the same episode. पहली बात. अब ये कि दोनों सिम्टम्स सेम एपिसोड में होंगे तो मेन डायग्नोसिस इन माय ओपिनियन अब एपिसोड आया है वो स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर का होगा.
तो अब आप कह सकते हैं कि अगर तो पेशेंट को जो एपिसोड आया है उसमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, डिल्यूजन्स हैं, और मेन डायग्नोसिस स्किज़ोफ्रेनिया और हुआ है, और उसमें हेलुसिनेशंस भी आ रही हैं, प्रोवाइडेड द मेन डायग्नोसिस स्किज़ोफ्रेनिया, you will call this episode as schizomanic disorder or schizoaffective disorder, a manic type. If it is ICD-10, then 4, so it was schizomanic disorder. DSM-5 should almost the same. I haven't consulted yet. एक ही एपिसोड में स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन इकट्ठे आ रहे हैं, you will call it as either schizodepressive disorder or schizoaffective disorder, depressive type. लेकिन my humble opinion, मैं उसको इस तरह से कहूंगा कि schizoaffective disorder, current episode schizodepressive. तो इसी तरह schizoaffective disorder mixed type का भी हो सकता है कि उसमें स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स भी आ रहे हैं, and at the same time the person is having the symptoms, mixed symptoms of depression and mania. और ऐसा भी हो सकता है कि स्किज़ोफ्रेनिया का रिलैप्स हुआ और उसमें अफेक्टिव कंपोनेंट है ही नहीं, फ्राइट और स्केयर और पैरानोया, तो उसको आप स्किज़ो अफेक्टिव नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा तो स्किज़ोफ्रेनिया में ये तो होता ही है कि द पैरानोया विल बी देयर इन स्किज़ोफ्रेनिया एंड पर्सन विल बी स्केयर्ड एंड फ्राइटन्ड, तो उसको आप कहेंगे कि इट्स अ रिलैप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. So hope it is clear. The person who has asked this question isn't he answer. So any question or any clarification regarding that? Okay. Then the next thing is psychotic depression. So psychotic depression means that so depression is Dushad bhai, what are the different types of depression classified severity? सर सिवियरिटी तो मेरे को जो जानकारी जो है यूजुअली माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर. Exactly. That's what I wanted to know. सिवियरिटी विथ और विदाउट साइकोटिक सिम्टम बोलते हैं. Exactly. ठीक है. अब it is so mild mild depression. So it is kind of पहली बात तो ये है कि डिप्रेशन के कितने एपिसोड्स आ रहे हैं. One episode, 2 episodes, तो एक ही एपिसोड है, तो आप उसको कहेंगे कि डिप्रेसिव एपिसोड माइल्ड और डिप्रेसिव एपिसोड मॉडरेट और डिप्रेसिव एपिसोड सिवियर. अब अगर वो विद साइकोटिक सिम्टम्स हो गया है, तो देन इट बी, you will call it severe depressive episode with psychotic symptoms or without psychotic symptoms. तो इसमें ये दो बातें होंगी. So severe depressive episode with or without psychotic symptoms. तो जो with को आप psychotic depression भी कह सकते हैं उर्फ़े आम में, or in general terms or in lay terms. So basically, like you can nickname it as a psychotic depression. Basically, a severe depressive episode
with psychotic symptoms. अब अगर अमेरिकन क्लासिफिकेशन में अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या ICD-10 में अगर रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो उसमें that will be the same classification. Current episode can be mild, moderate, with psychotic symptoms or without psychotic symptoms. Now, what other things could be there? What other diagnosis comes to your mind in which एक तो हो गया ना सिंपल फर्स्ट डिप्रेसिव एपिसोड, एक हो गया रिकरेंट डिसऑर्डर, तीसरा डायग्नोसिस क्या हो सकता है? एनीवन? What other diagnosis comes to your mind if you are seeing a depressed person? I want two more diagnoses. मेलानकोलिक टाइप का कुछ होता है सर? हाँ, वो तो अच्छा, ये भी पहली बात ये है कि melancholic type, that's the same thing. So severe depressive episode is in itself is usually melancholic. अगर उसमें biologic are so predominant, then you melancholic depression, psychomotor retardation. तो लेकिन अगर आप में देखें और etiology में देखें तो what are the different for severe बाइपोलर भी हो सकता है ना किंतु शायद भाई? यस सर, बाइपोलर डिप्रेशन हो सकता है। बिल्कुल, बाइपोलर के कॉन्टेक्स्ट में भी आता है सिवियर डिप्रेसिव एपिसोड विद साइकोटिक सिम्टम्स। अच्छा, दो और चीजें मेरे जहन में आ रही हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। लेट्स स्टार्ट विद, जब भी आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएं तो अभी तो ICD-10 चल रही है और ICD-11 जब आएगी नेक्स्ट ईयर उसको याद बड़ी देर लग जाएगी। इट्स सो डिफरेंट देन ICD-10। तो जब भी आपने डायग्नोसिस बनाना है यू स्टार्ट विद F00। 00 में कौन सा डिप्रेशन आएगा जो कि साइकोटिक डिप्रेशन हो सकता है? F2, F09। जी दुशाद भैया। सर और एक बार क्वेश्चन बोलिए सर, थोड़ा आवाज कट गया था। अच्छा, F0 to F09, what are the diagnostic criteria? सर ये तो डिप्रेशन तो F30 में आया है। कैटेगरी? हाँ, ये लेकिन अगर मैं कहूँ F0 to F09 भी है डिप्रेशन तो आप उसको क्या कहेंगे फिर? ऑर्गेनिक F0 तो सर ऑर्गेनिक और क्या सब्सटेंस यूज रिलेटेड उसमें आता है 1। F0 ऑर्गेनिक हाँ रिलेटेड आता है। और हाँ F20 सिजोफ्रेनिया साइकोटिक डिसऑर्डर रिलेटेड है। F30 प्रॉपर मूड डिसऑर्डर है। F40 एंजाइटी डिसऑर्डर, OCD और कुछ रिलेटेड है। F50 सर भूल गया। 60 पर्सनालिटी डिसऑर्डर, 70 मेंटल रिटार्डेशन एंड डिसेबिलिटी। हाँ 80 का भूल गया सर, चाइल्डहुड रिलेटेड डिसऑर्डर में आता है, वो भूल गया सर। सो हाँ बिल्कुल सही है। तो बेसिकली व्हाट वी सो F0 में जब आएगा ये तो इट विल बी एन ऑर्गेनिक, ठीक है।
maybe F0 6 point something or somewhere there. ठीक है. ऑर्गेनिक, अगर एक बंदा है जिसको एनकेफेलाइटिस हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कोविड एनकेफेलाइटिस हुआ है, और वो डीप डिप्रेशन में चला जाता है, कैटाटोनिया में चला जाता है, और साइकोटिक सिम्टम्स भी हैं, then you will say that it is an organic depression, organic depressive episode with psychotic symptoms. ठीक है. और उसको भी आप निकनेम में psychotic depression with psychotic symptoms, even with the nickname. Similarly, a person who is using alcohol and drugs can go into severe, deep melancholic depression. So, uh, or even medication, for example, can be medication induced. अगर कोई ऐसी medication ले रहे हैं, for example, tetrabenazine can cause depression. और इसके अलावा जो है वो लेविट्रासिटाम, कैप्रा, आप लोग यूज करते हैं सऊदी अरेबिया में दुशाद भाई? सर कभी कभी यूज होता है सर. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक है तो हो जाता है. Exactly. So that can, it's not very common, लेकिन ये कि that can also cause depression. So medication induced, alcohol is a great depressant. So alcohol induced psychotic depression हो सकता है. इसी तरह फिर cannabis और ये all substances. Then you come to F20s, तो जो से हमने schizoaffective disorder का जिक्र किया, तो उसमें the episode schizophrenia in itself is psychosis, so you don't need more psychosis with that, but schizophrenic symptoms can be more severe, and there can be severe depressive episode with along with schizophrenic symptoms, and you can call it schizophrenia. Like schizoaffective disorder, current episode with current episode severe depression. ठीक है. और schizoaffective disorder, depressive type, person is severely depressed. So these all can be the differential diagnosis. अच्छा, एक दुशाद भैया, अगर एक बंदा है जिसको फरवरी में उसको स्किज़ोफ्रेनिया का रिलैप्स हुआ, and then he gets a depressive relapse later on in June, और every year ये होता है. फरवरी में उसको स्किज़ोफ्रेनिया का रिलैप्स होता है, जून में उसको डिप्रेशन का रिलैप्स. डिप्रेशन होता है तो देयर आर नो साइकोटिक सिम्टम्स. जब उसको स्किज़ोफ्रेनिया का रिलैप्स होता है, देयर आर नो डिप्रेसिव सिम्टम्स. और जब डिप्रेशन का रिलैप्स होता है, नो साइकोटिक सिम्टम्स. व्हाट डू यू कॉल इट? सर ये तो थोड़ा मेरे को भी डायग्नोसिस में प्रॉब्लम है, तो दोनों ही डायग्नोसिस बन जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर क्राइटेरिया अगर देखें तो एक ही एपिसोड में कुछ या सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन में दोनों सिम्टम रहना चाहिए सीजोअफेक्टिव बोलने के लिए. तो पोस्ट साइकोटिक डिप्रेशन अगर नहीं बन रहा है, पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन अगर नहीं बन रहा, तो मेरे को भी मालूम नहीं सर क्या बोलना है करके. No, you are right. You have already given the two diagnoses. One could be, अगर तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया का जैसे ही उसका रिलैप्स खत्म होता है, साथ ही उसको डिप्रेशन हो जाता है, then post schizophrenic depression could be one entity. लेकिन अगर वो रेमिशन में जाता है, रेमिशन में जाने के बाद 2-3 महीने के बाद उसको डिप्रेशन आता है, और उसमें साइकोटिक सिम्टम्स नहीं आ रहे, और उसमें कोई मेनिया की हिस्ट्री भी नहीं है पास्ट में, then you would say schizophrenia on its own and recurrent depression
ऑन इट्स ओन, तो दोनों ही डायग्नोसिस आ जाएंगे। अच्छा, अब एक बंदा है जिसको लेट्स से के 1998 में एक मैनिक एपिसोड हुआ, there were no psychotic symptoms at that time with that manic episode. 2003 में उसको स्किज़ोफ्रेनिया स्टार्ट हो गया और 2006 में उसको एक और मैनिक एपिसोड आया। अब फरवरी 2020 स्किज़ोफ्रेनिया का रिलैप्स हुआ और मई 2020 में उसको डिप्रेसिव रिलैप्स हो रहा है। What would you call it? They are all independent of each other. So what will be the diagnosis? सर मेरे नॉलेज में तो ये है कि अगर एक पैटर्न बार बार आ रहा है और बीच में कोई दूसरा डिसऑर्डर, जैसे प्रीडोमिनेंटली बाइपोलर का सिम्टम आ रहा है और बीच में मान लो एक आध बार सिजोफ्रेनिया का सिम्टम होता है, तो इट डज नॉट इनवैलिडेट द डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। बट ये तो रेगुलर हो रहा है, तो मेरे को लगता है इंडिपेंडेंट डायग्नोसिस ही बनना चाहिए सर। बिल्कुल, क्योंकि लेट्स से कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया का रिलैप्स 7-8 बार हो चुका है, बट यूजुअली देयर आर नो मैनिक और डिप्रेसिव सिम्टम्स ड्यूरिंग द स्किज़ोफ्रेनिक रिलैप्स। तो आप उसका इंडिपेंडेंट डायग्नोसिस बनाएंगे, स्किज़ोफ्रेनिया नंबर 1, नंबर 2 बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, करंट एपिसोड डिप्रेस्ड। जब एक ही उसमें आ रहे हों, एक ही एपिसोड में, then you call it schizoaffective disorder. ठीक है जी। अच्छा, so that was the second question, and let's see के जो third question था, what was it actually? Let's go through different groups. अच्छा, ये अभी क्वेश्चन इसमें आया है कि the most effective and economical treatment of disabling phobia is ये MCQ है basically, minor tranquilizer, insight oriented psychotherapy, tricyclic antidepressants, behavioral therapy, and MAOI. So somebody has ticked I think behavioral therapy, and I think I will go with that basically. What do you think? सर डिपेंड करता है कौन सा फोबिया है एक्चुअली सर, डिपेंड करता है। और डिसेबिलिटी है तो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन का ज्यादा स्कोप भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा फोबिया है। जैसे पैनिक डिसऑर्डर हो गया, उस टाइप का कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर है, एगोराफोबिया हो गया है, उसमें तो थोड़ा कितना क्या है फार्माकोलॉजी तो देना ही पड़ेगा, लेकिन यस बिहेवियरल ट्रीटमेंट हैज इट ओन मेरिट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंड लेट मी सी कोई और अगर क्वेश्चन है इसमें, IMM के ग्रुप में देखता हूँ मैं। Okay. Is a question: while recruiting the employees for a multinational organization for security duties, the CEO asks you to conduct some tests for psychological assessment of the candidates. Which kind of psychological tests would you like to conduct? So yeah, it will be somebody has said personality assessment tests. Could be Minnesota multiphasic personality assessment, could be other personality tests as well, and mention at least 5 such tests. So yes, so 5 personality tests you can mention, किसी ने big 5 inventory, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। What do you understand by the term validity and reliability of tests? Anyone
wants to answer? Uh, Anybody can unmute themselves. And Benazir, what do you understand by reliability? The reliability of test, then सर एक में ये उर्दू था ना में कि बता दे। जी सर, validity is basically accuracy and reliability is that persistent results come after every मतलब जब भी हम ट्रायल करेंगे तो वही रिजल्ट्स बार बार आएंगे, तो फिर हम कहेंगे कि ये रिलायबल है। और Exactly. वैलिडिटी का मतलब है कि एक्यूरेसी, कि हाउ क्लोज इट इज टू द रियल वन, सो दैट इज वैलिडिटी, जो मुझे समझ आई। Exactly. So what is like एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का टेस्ट है, तो उसने पर्सनालिटी को ही मेजर करना है। उसने ऐसा नहीं होगा कि आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर के टेस्ट पे आप सारे क्वेश्चंस आपके मेमोरी बेस्ड हैं या आईक्यू बेस्ड हैं, तो देन it will be a psychometric assessment. It's not a personality assessment. In that case, दैट्स नॉट वैलिड, क्योंकि आपने जो टूल बनाया है पर्सनालिटी असेसमेंट का, उसमें जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो भी पर्सनालिटी से रिलेटेड होने चाहिए। अगर वो क्वेश्चंस पर्सनालिटी रिलेटेड नहीं होंगे, then it will be something else. Then it's not valid. ठीक है ना? अगर आपने बनाया है जी मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट टूल, फॉर एग्जांपल मोका, और आपने उसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन से मुतल्लिक रखती हैं, देन इट्स नॉट अ वैलिड कॉग्निटिव टेस्ट. कॉग्निटिव टेस्ट शुड काइंड ऑफ measure something related to cognition, और जितना वो उससे क्लोज होगा, फॉर एग्जांपल अगर ICD-10 या DSM-5 क्राइटेरिया से जितना क्लोज होगा, मोर वैलिड इट विल बी. और अब जो दूसरी बात है कि स्पेसिफिसिटी, एक वर्ड में बोलूं तो स्पेसिफिसिटी हो जाएगा ना? उस पे आते हैं, उस पे अभी बाद में आते हैं. तो एंड देन द अदर रिलायबिलिटी है कि मैं जब भी बार बार, फॉर एग्जांपल एक थर्मोमीटर है, जो डिजिटल थर्मोमीटर है, उसको आपने पहली बात तो ये कि वो जो मेजर कर रहा है वो टेम्परेचर ही मेजर कर रहा है, दैट्स वैलिडिटी. अब वो थर्मोमीटर है, वो आप एक दफा आप उसको, फॉर एग्जांपल इट्स अ काइंड ऑफ गन थर्मोमीटर और ईयर थर्मोमीटर और डिजिटल थर्मोमीटर. अब एक दफा तो वो बताता है आपको 98.6. आफ्टर 3 minutes you check, it tells you 99.8. After another 3 minutes it tells you 97.3 Fahrenheit. So will it be reliable or not? Within minutes वो different readings दे रहा है. Will it be reliable? Text कर दें बेशक. सर डिफरेंट रीडिंग है तो रिलायबल नहीं होगा सर. Reliable नहीं होगा ना, ठीक है ना? It will be valid, but it won't be reliable. और so that's the reliability. अब दूसरी ये है कि एक बंदा जो है वो करता है, फॉर एग्जांपल मेजर करता है मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव. both are second year trainees in Chennai or Islamabad or Lahore. So second year MD trainee or second year FCPS trainees, and both are at the same level. लेकिन एक बंदा जो है वो उस पे मौका का रिजल्ट वो निकालता है तो उसका 24 out of 30 निकलता है. उसी पेशेंट का, उसी लेवल का ट्रेनी जब उसको निकालता है और वो कहता है कि नहीं 16 out of 30 है,
इतना बड़ा अगर डिफरेंस आ रहा है, then it may not be a reliable test. ठीक है, तो that's inter-rater reliability, test retest reliability, that's another point. So test retest reliability, inter-rater reliability, these are the two components. और इसके अलावा एक होती है split half reliability. Split half reliability ये है कि जो फर्स्ट हाफ है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सेकंड हाफ ऑफ द टेस्ट के से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, एंड दे आर टोटली डिफरेंट डोमेन, और या की मेजरिंग स्कीम इज टोटली डिफरेंट, और इतना ज्यादा फर्क है कि वो आप उसमें देयर इज अ बिग डिफरेंस कि आपके जो लास्ट 15 क्वेश्चंस है वो इंतहाई आसान है और शुरू के 15 क्वेश्चन इंतहाई मुश्किल हैं. फॉर एग्जांपल इफ इट इज लाइक दैट, then you will call it split half reliability. जब आप उसके आप देखते हैं कि जी दोनों हाफ्स को जब आप करते हैं और दूसरे you test it again and again and both halves give you the similar results, then you say that there is a split half reliability as well. So that was another question about validity and reliability. Now we come to specificity and sensitivity. That is a closely knitted concept, very close. So specificity ये है, sensitivity ये है कि जी आपने, the test is very sensitive कि आपने एक for example ESR और C reactive protein, अब वो आपने किया है, इट इज वेरी सेंसिटिव टू इन्फ्लेमेशन. थोड़ी सी भी इन्फ्लेमेशन होगी कहीं भी बॉडी में तो सी रिएक्टिव प्रोटीन विल बी रेज्ड. ठीक है, तो दैट इज, दुशाद भैया क्या होगा ये, अनम्यूट करके बताएं. सी रिएक्टिव प्रोटीन, इज इट अ सेंसिटिव टेस्ट और अ स्पेसिफिक टेस्ट? अनम्यूट करके पहले. हाँ सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए सर. Okay, C-reactive protein, for example, in medicine, अगर आप करवा रहे हैं, is it a sensitive test or a specific test? Or ESR in the older, older terms? सेंसिटिव हो सकता है, स्पेसिफिक तो शायद नहीं होगा. Exactly, that is sensitivity. ठीक है ना, कि वो छोटी से छोटी भी अगर इन्फ्लेमेशन होती है उसको कैच कर लेगा. And if, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अब अगर आप आते हैं दूसरी तरफ के, आप एक ऐसा टेस्ट करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोन मैरो बायोप्सी करवाई है आपने टू रूल आउट एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, तो वो सेंसिटिव होगा या स्पेसिफिक होगा? इट मे नॉट बी वेरी सेंसिटिव. So you have to apply very sophisticated measures, but that will be specific. That's the difference between specificity and sensitivity. So it's a bit different than validity and reliability, but the theme is very similar. ठीक है ना जी. अब साइकाइट्री में अगर आप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जनरलाइज्ड एट्रोफी देख ली है ब्रेन में, तो अगर आपको सीटी स्कैन पे नजर आ रही है, सो दैट मींस दैट सीटी ब्रेन इज क्वाइट सेंसिटिव इन पिकिंग द एट्रोफी, but will it be specific to Alzheimer's or no? You can text as well.
स्पेसिफिक टू अल्जाइमर्स तो नहीं होगा ना? अल्जाइमर्स के लिए जो चीज स्पेसिफिक होगी वो होगी कि आप देखेंगे कि आपकी जो क्लिनिकल हिस्ट्री है, क्लिनिकल कोरिलेशन, दैट विल बी मोर स्पेसिफिक टू अल्जाइमर्स। और फॉर एग्जांपल जिसका मैं डैट स्कैन का सर के लेक्चर में जिक्र कर रहा था कि DAT स्कैन, विच इज अ काइंड ऑफ स्पेक्ट, द सेम एस्पेक्ट, लेकिन जो उसमें केमिकल जो आइसोटोप यूज करते हैं उसका नाम है डैट स्कैन। इट विल label only basal ganglia, so that will be more, I won't comment on sensitivity, but that will be more specific to develop basal ganglia lesions. तो अगर उसमें वो अंडर मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है बेसल गैंग्लिया में, दैट मीन्स कि या तो उसमें पार्किंसंस डिजीज है या लिवी बॉडी डिमेंशिया है, क्योंकि ये ही दो उसमें होंगी diseases होंगी जिसमें basal ganglia will be shrunk and there will be a hypometabolism of inside the basal ganglia, so that will be more specific. ठीक है, इसी तरह frontal lobe syndrome, frontal assessment battery, that will be more kind of specific for frontal lobe, while MoCA will be more generalized. Mini mental state examination will be more uh, it's not even sensitivity भी उसकी इतनी अच्छी नहीं है, that's why MoCA can be, you know, 30 or so, and people still may have frontal lobe cognitive impairment may still be there. But MoCA is good for sensitivity. It's more sensitive as compared to mini mental. लेकिन जब आपको स्पेसिफिसिटी चाहिए होगी तो फिर आपको देखना पड़ेगा, आप एडनब्रुक्स में देखेंगे या फिर आप उसमें उसका फ्रंटल असेसमेंट बैटरी करके देखेंगे कि आर द सिम्टम्स ग्लोबल और रिलेटेड टू फ्रंटल लोब ओनली. And that was one question. Yeah, I think we have covered most of the questions. So any other questions before we finish off? Arjun sir. Gigi? You don't think? Okay. Okay, so yeah, the questions you asked about schizoaffective and psychotic depression, they are in the beginning of, so very soon, and I stop the recording. Thank you very much. Let me